Good morning students. Myself Sanjay Kumar Gupta, Math and Science teacher in St. Michael's Academy, Bethiya. Students, in this video we shall learn in Science for class 7, chapter 7, Physical and Chemical Changes. In previous videos we have learned something about physical and chemical changes, in which we have also read about physical and chemical changes in detail, and in this section we shall read about some more chemical changes. As coal contains carbon which burns in the presence of oxygen gas present in the air to give out carbon dioxide gas along with some other substances, this can be represented as coal plus oxygen form carbon dioxide. यानी जब कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. दैट कैन बी सीन इन केमिकल फार्मूला. कोल मीन्स कार्बन, C is burnt in the presence of oxygen means O2, that forms CO2, and thus we form carbon dioxide. It is a chemical change. So here burning of a substance is always a chemical change, and burning is also usually called combustion. यानी कोई भी चीज जब जलती है तो वह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और इस तरह से हम जलने को प्रायः दहन के नाम से जानते हैं. As here is an activity given कि take some vinegar in a test tube and add a pinch of baking soda. Observe what happens and answer these questions on the basis of your observation. As we have to see is a hissing sound produced. As in chapter acid, base and salt also we did this activity. कि हमने क्या देखा था कि जब हम विनेगर में थोड़ा बेकिंग सोडा डालते थे तो उस समय एक हिसिंग साउंड पैदा होता था. नाउ सम बबल्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हियर, यानी वहाँ कुछ बुलबुले भी पैदा हुए. यानी ये क्या बतलाया कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ. एंड द गैस बीइंग इवॉल्व इज कार्बन डाइऑक्साइड which can be represented as baking soda plus vinegar form carbon dioxide plus sodium acetate and also water is given out. It can be shown by the chemical formula of baking soda as NaHCO3. Vinegar can be shown as CH3COOH. Carbon can be shown CO2 as well as sodium acetate means CH3COONA as well as water produced, which can be seen as H2O. So these chemical formulas should be remembered by you. You can test that a gas being produced is carbon dioxide by either of the two ways. First, bring a burning candle or a matchstick near the mouth of the test tube. What do you find? The burning matchstick gas gets extinguished. यानी जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को उस प्रखनली के मुंह पर रखते हैं तो वह बुझ जाती है, और यह मोमबत्ती का बुझना दर्शाता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की पैदाइशी हुई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
does not help in burning. Second, allow the gas to pass through a test tube containing lime water. Here we find that the lime water becomes milky. यानी हम अब उस टेस्ट ट्यूब का कनेक्शन किससे करते हैं? एक दूसरे टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर रखे हैं उससे कर देते हैं। हम यह पाते हैं कि कुछ देर के बाद वह लाइम वाटर जो थोड़ा मटमैले कलर का था, अब उसका रंग बिल्कुल दुधिया हो जाता है और यह बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर वहाँ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया है, साथ में वाटर भी पैदा हुआ है। दिस कैन बी सीन एज CaOH2. Now observe the color change taking place. Does the lime water turn milky? About it I told you कि यह रंग में दुधिया दिखिएगा। You will find that when carbon dioxide comes in contact with lime water, it turns a white solid substance called calcium carbonate. यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के पानी के साथ संपर्क में आया तो उसने एक नया चीज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का फॉर्मेशन कर दिया, साथ में पानी भी वापस आया। दिस गिव्स अ सॉल्यूशन। द मिल्की कलर, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, which can be seen in a chemical formula as CaOH2 plus CO2, again CaCO3 and H2O is to be got. So here carbon dioxide gas turns lime water milky, यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने ही उस चूने के पानी को दुधिया रंग में बदल दिया। Now we see the next activity 12. So in activity 12 it's given, let's now study the reaction between iron fillings and sulfur powder. Mix some iron fillings and sulfur powder in a china dish. Bring a magnet close to the mixture. What happens? क्या होगा? The iron filling get attracted towards the magnet and the mixture can be easily separated. यानी अब हम सल्फर में जब आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाएंगे तो उस समय क्या होगा कि आयरन और सल्फर अपने अपने ओरिजिनल गुण को खोए नहीं हैं, तो मैग्नेट के पास लाते ही वह लोहे के टुकड़े उस मैग्नेट में सट जाएंगे, जो यह बता रहा है कि अभी तक रिएक्शन नहीं हुआ है। Do you think any new substance has been formed by mixing iron fillings with sulfur? Obviously, your answer will be no. Now, we heat the mixture containing iron fillings and sulfur powder on a burner. Observe the changes taking place. Can you see the yellow sulfur powder? Does it disappear? यानी अब हम क्या देखते हैं, पहली बार में हमने रॉ मटेरियल्स लिया था और उसमें देखा था कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर अपने गुणों को खो नहीं रहे थे, लेकिन जब हम इसको अब गर्म करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि आयरन फिलिंग्स और जो सल्फर के पाउडर पहले वाले रंग में अब नहीं रहेंगे। ओके, means do you find the mixture on heating glows brightly and gradually changes into a black solid? यानी अब जो सल्फर पहले किस रंग का दिख रहा था, पहले वह पीले रंग में दिख रहा था, अब उसका रंग कैसा हो गया, अब वह ब्लैक कलर में चेंज हो गया। Now bring a magnet close to this black solid. Is it affected by the magnet? यानी अब हम क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया,
मैग्नेट को पुनः उस मिश्रण में ले आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ अब जो पहले मैग्नेट की तरफ आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो रहे थे, अब वो अट्रैक्शन बंद हो जाएगा। मीन्स वी विल फाइंड दैट द ब्लैक सॉलिड formed is very different from the initial mixture. It is not affected by the magnet. Do you think a new substance has been formed on heating iron with sulfur? Obviously. यानी अब जब हमने इसको गर्म किया तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। पहला तो ये कि उसका रंग जो पहले पीले कलर में था अब वह ब्लैक कलर में आ गया। सेकेंड, जो आयरन के फिलिंग्स मैग्नेट की ओर आकर्षित हो रहे थे, अब यह आकर्षण बंद हो गया। यानी यहाँ हमने क्या देखा कि जो आयरन फिलिंग्स थे या सल्फर था उसने अपने गुण को बिल्कुल खो दिया और एक बिल्कुल नया चीज बन गया। दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड, यू कैन से दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आयरन प्लस सल्फर फॉर आयरन सल्फाइड एंड in the chemical formula Fe plus S form FeS. Okay, so you have to learn here that chemical changes brings many new changes among the mixture, and here we find that the substance lose their own property. Now chemical changes are very useful to us. Some of the uses of chemical changes are listed below as burning of coal, petrol and gas is a chemical change. A lot of heat is given out in such a change. This heat is used to produce electricity, to run engines and also to cook food. Many chemical changes take place when a metal is extracted from its ore. For example, aluminium and iron are extracted from their ores by a series of chemical changes. जैसा कि अपने दैनिक जीवन में हम देखते रहते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही हमें कई फ्यूल्स से, कई ईंधनों से हमें ताप की प्राप्ति होती है, लाइट की प्राप्ति होती है। साथ में बहुत से ऐसे परिवर्तन हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम किसी अयस्क से उसके खनिज की प्राप्ति करते हैं। Chemical changes are also used in purification of metals. Many useful things that you use in your daily life like soaps, detergents, polythene bags, etc. are produced due to chemical reactions. Medicines are also a result of many chemical reactions. तो आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हम अपने दैनिक जीवन में साबुन, डिटर्जेंट, पॉलीथीन बैग या फिर दवाइयाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही तैयार होते हैं और हमारे शरीर में भी कुछ रासायनिक परिवर्तन करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन। In activity 6 we saw the iron nails getting rusted. So rusting of iron is a very common chemical change taking place around us. So what is rust? Young क्या होता है? Rust is a reddish brown substance that appears on the surface of iron article when they are left exposed to moist air. इसके बारे में हमने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप किसी लोहे के सामान को नमी वाले क्षेत्र में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसके ऊपर कुछ ब्राउन कोटिंग्स आ जाते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लोहे के संपर्क में आने से तैयार
हुआ था, और इसी को हम जंग लगना या रस्ट कहते हैं, जो लोहे के सामानों को कमजोर कर देता है। द केमिकल चेंज दैट occurs during rusting is represented as iron plus water plus oxygen for rust, as that can be shown as 4Fe plus XH2O. X means कि नंबर में भी वेरिड, कुछ भी यहाँ संख्या हो सकती है, प्लस 3O2 फॉर 2Fe2O3 XH2O. X मीन्स एज आई टोल्ड कि एनीथिंग, जैसा नमी होगा उसके हिसाब से यहाँ यह पानी की मात्रा परिवर्तनशील हो जाएगा। कैन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑकर एनीवेयर ऑफ सम कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू ऑकर, यानी कि लोहे के सामानों पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, क्या यह प्रक्रिया हर जगह एक जैसी होगी या जगह के अनुसार इसमें परिवर्तन भी आ सकता है? तो हमारा जवाब क्या होगा कि हाँ, हर जगह एक समान ही होगा। Now let's do an activity to know the conditions necessary for rusting to take place। यानी अब कौन कौन सी चीज जरूरी है, जैसे to demonstrate by it we take 3 test tubes, label them as A, B and C respectively. Now we place 3 clean and shiny iron nails in each test tube. In test tube A, put some anhydrous calcium chloride and cork it. Anhydrous calcium chloride absorbs all the water present in the air. This means no moisture is left in test tube A। यानी पहले टेस्ट ट्यूब A में हम क्या करते हैं, एक कुछ सूखे कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, डाल देते हैं। इससे उस प्रणाली में या उसके आसपास की हवा में अगर नमी है तो वह सब नमी को सोख लेता है। इन टेस्ट ट्यूब बी ऐड बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम एयर। ऐड सम ऑयल इन द टेस्ट ट्यूब एंड कॉर्क इट। यानी अब हम दूसरे में क्या डालते हैं, कुछ उबले हुए पानी जिसमें हवा नहीं है, और साथ में थोड़े तेल की 2-4 बूंदे उसमें डाल देते हैं। यू विल फाइंड दैट अ लेयर ऑफ ऑयल इज फॉर्म्ड ओवर बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी। दिस लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द आयरन नेल। यानी तेल की परत डाल देने से क्या होगा कि एक तो पहले से ही हवा उसमें नहीं है, और जो नई हवा उसके साथ मिलना चाहेगी तो वह तेल के जो कोटिंग्स हैं उसको रोक देंगे। एंड इन टेस्ट ट्यूब सी ऐड ऑर्डिनरी टैप वाटर एंड कॉर्क इट। तीसरे में जैसा कि बताया गया, हम सामान्य नल का पानी भरते हैं, फिर तीनों में कॉर्क लगा देते हैं। लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर 2 to 3 days and observe after 2 to 3 days in which test tube has the iron nail rusted। अब हम यह देखेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब का कांटी जंग युक्त हो गया। You will find that only the iron nail placed in test tube C has rusted। क्योंकि जो तीसरी प्रणाली C में हम कांटी रखे थे उसी में जंग लगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में एयर का कनेक्शन नहीं था, दूसरे वाले में पानी का कनेक्शन तो था लेकिन एयर का कनेक्शन नहीं था, और तीसरे वाले में पानी के साथ साथ एयर का भी कनेक्शन था जिसने उस लोहे को जंग लगा दिया। सो टेस्ट ट्यूब ए हैज नो मॉइस्चर फॉर आयरन नेल। ड्राई एयर अलोन हैज नो इफेक्ट ऑन आयरन नेल। टेस्ट ट्यूब बी हैज नो एयर फॉर आयरन नेल। वाटर अलोन हैज नो इफेक्ट on iron nail, and test tube C has both air
and moisture so the iron nail gets rusted. Thus we conclude that both air and moisture are essential for rusting to take place. इस तरह से हमने यह निष्कर्ष निकाला कि जंग लगने के लिए हवा और नमी दोनों की जरूरत होती है। जैसा कि पहले ही हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जंग लगने की जो स्थितियां बताई गई थी क्या वह हर जगह होंगी, तो हमारा जवाब हाँ में था और दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज टाइम टू नो हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, about which we will learn in the next video. Till then, thank you.